Hello students, my name is Alok Sharma and on behalf of Performance SR, I am going to teach you today's topic, that is integers for class 7. Students, this is the first chapter of our NCERT mathematics notebook. Okay, so starting with integers. Students, let's see an amazing thing on the board. Meaning of integers is whole, but you know whole numbers are up to infinity. 0, 1, 2, 3, all the counting numbers are treated as whole numbers. Okay, then why this integers is called whole? Now I change its meaning. I will write full or complete. It's okay. Now don't confuse yourself that it is not whole. Now it is full or complete. Going to the next step, I want to tell you one thing. How many pens are there in my hand? It's only one. Okay. How many dusters are there? 2. Not 1.5, not 2.5. How many students are there in your class? Probably 40. Okay. So 1, 2, 40. And how many floors does this building have? It's I think 4 floors. Now students, you can see these all numbers are full, complete or whole. Okay, we can add 0 also. Moving to another example. Students, if you are going in a multi-story building and a lift is there, a liftman is also there. You will tell the liftman, भैया प्लीज़ मुझे 4th फ्लोर पे जाना है. वो 4 का बटन प्रेस करेगा. भैया मुझे 8th फ्लोर पे जाना है. वो 8 का बटन प्रेस करेगा. 4, 8, 10, 17, 19. Again, these all numbers are complete numbers, full numbers, whole numbers. Again, whole is a confusing word. I'll not use it. Okay. Let's suppose you have a chocolate and you have eaten half part of it. So you have eaten half part. Suppose again your age is 12 years, 6 months, then your age is again you have got 96.8% marks in mathematics. Again, now you can see these numbers are not full or not complete. Okay, so these numbers are not treated as integers. So this is the first step of understanding the integers. Now second step. As I told you, integers are complete numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5. Students, let us suppose a mirror is there and on this mirror I will write
0. Okay, we have numbers 1, 2, 3, 4, 5 and so on up to infinity. These are whole numbers, counting numbers. Behind the mirror or in front of every integers there is a number which is just opposite to the given number. For example, अगर 1 यहाँ पे है तो 1 के ऑपोजिट क्या होगा? -1. 2 के ऑपोजिट -2, अगेन -3, देन -4 and so on up to infinity. Now you can see integers contain whole numbers as well as negative of every number, and this negative of every number is called additive inverse. मतलब ये हुआ कि 1 का एडिटिव इन्वर्स है -1, 2 का एडिटिव इन्वर्स है -2, और जब भी हम किसी नंबर को उसके एडिटिव इन्वर्स से ऐड करते हैं हम कहाँ पहुँच जाते हैं? बिल्कुल मिडल में, मीन्स 0, यानी कि 1 प्लस -1, 1 को और -1 को ऐड करेंगे तो हम आएंगे 0 पे. ओके, दिस इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स. Now coming to the formal definition of integers. Integers is a set of whole numbers as well as negative numbers. Okay. These are called integers, but remember this number, this number, this number, this number, these numbers are not the part of this set. Here you can see all the complete numbers are there. कोई पार्ट आपको इंटीजर्स के अंदर नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा पूरा मिलेगा. ओके, एक और एग्जांपल, अगर हम मार्केट से बाइसिकल्स लेके आते हैं 2 बच्चों के लिए, तो हम 1 लाएंगे या 2 लाएंगे या 3 लाएंगे. 1.5 नहीं आ सकती, 2.5 नहीं आ सकती. अगर मुझे एक पेन परचेज़ करना है मार्केट से राइटिंग के लिए, तो 1 पेन आएगा, 2 पेन्स आएंगे, 3 पेन्स आएंगे, 3.5 पेन्स नहीं आएंगे. तो ये यूज़ है हमारा फुल नंबर्स का, कंप्लीट नंबर्स का. ओके, नाउ मूविंग अहेड, ये नेगेटिव नंबर्स क्या है? पहले कभी सुना है नेगेटिव नंबर्स के बारे में आपने? ओके, सो नेगेटिव नंबर्स इज अ हाइपोथेटिकल नंबर विच इज अगेंस्ट आवर अजम्पशन. मतलब ये है कि जो चीज़ रूल्स में चल रही है, हमारी हैबिट में है, हमारे लिए अच्छी है, वो पॉजिटिव है, और जो रूल्स के अगेंस्ट चल रहा है, हमारे लिए लॉस दे रहा है, हमारे अगेंस्ट है, अच्छी चीज़ों के खिलाफ है, नेचर के अगेंस्ट है, वो सारे का सारा नेगेटिव हो जाता है. प्रैक्टिकली कैसे होता है देखते हैं. You know students, this is the month of June and temperature is rising. So टेम्परेचर क्या है हमारा यहाँ पे? मान लीजिए आज है 42 डिग्री सेल्सियस. यही टेम्परेचर सर्दियों में कितना था? मीन्स मंथ ऑफ जनवरी ये पहुँच जाता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस तक. ओके, मान लीजिए कि ठंड इतनी ज़्यादा हो जाए कि बर्फ़ भी जम जाए, तो है ही नहीं इसके नीचे नंबर हमारे पास कोई. क्या यूज़ करेंगे उसके लिए? 0 तो हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाके ख़त्म कर दिया, उससे भी नीचे टेम्परेचर हो सकता है. उसके लिए क्या बोलोगे? 1, 2, 3, नो, दीज आर ऑल देयर बिटवीन 0 and 42. वो सब आ चुके हैं. इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा
नेगेटिव नंबर -5 डिग्री सेल्सियस और -10 डिग्री सेल्सियस, एंड सियाचिन ग्लेशियर पे टेम्परेचर होता है -30 डिग्री सेल्सियस टू -40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ ये देखिए आप, माइनस हमने यूज़ किया है किसी नंबर को इंडिकेट करने के लिए। ऐसे यूज़ करते हैं माइनस को कि किसी चीज़ के ऑपोजिट जाने के लिए, यानी ज़ीरो के हम उल्टा चल पड़े हैं, आप ऑपोजिट चल पड़े हैं, डाउनवर्ड चल पड़े हैं। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बना है और उसमें खूब सारी शॉप्स हैं। ओके, सो कॉम्प्लेक्स इज लाइक दिस इज आवर प्लेटफॉर्म, अर्थ है, हम इसे ज़ीरो लेंगे और ये मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। Let's suppose 7 floors are there, starting with 1. So बार्बर शॉप हमें हो सकता है सेकंड फ्लोर पे मिले, शू शोरूम मिले हमें 5th फ्लोर पे, और एपरल्स मिले हमें 7th फ्लोर पे। लेकिन गाड़ी पार्किंग करनी है हमें बेसमेंट में, तो बेसमेंट के अंदर भी 2 फ्लोर्स हैं। अब गाड़ी आप कहाँ खड़ी करेंगे, इसको क्या नाम दूँ मैं? 1 तो आ चुका, नीचे वाले को 2, ये भी आ चुका। अब देखिए 0 के नीचे जो नंबर स्टार्ट होंगे दोज विल बी -1, -2। ये यूज़ है माइनस नंबर्स का, नेगेटिव नंबर्स का। ओके, सी द नेक्स्ट एग्जांपल। मान लीजिए कि मैंने बैंक में हर महीने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए, तो जब तक मैं पैसे डिपॉजिट कराऊंगा दोज विल बी पॉजिटिव फॉर मी, हम उनको ऐड करते चले जाएंगे। बट अगर पैसा विड्रॉल किया मैंने, मतलब अब देखिए जिस चीज़ में फ़ायदा हो रहा था वो चीज़ प्लस थी, विड्रॉल करूंगा तो पैसे कम हो जाएंगे, नेगेटिव होगी मेरे लिए, इसलिए हम उसके लिए नेगेटिव यूज़ करेंगे। अगर रुपए हमने जमा करवाए मीन्स डिपॉजिट करवाए तो प्लस थे, लेकिन विड्रॉल अगर किया हमने तो वही नंबर हमारा नेगेटिव बन गया, माइनस बन गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप इंटीजर्स आर क्लियर टू यू, एंड next in the next topic we'll move to the properties of the integers. Okay students, now moving ahead to the closure property of integers. Meaning of closure property is, if a rule is true for a pair of numbers or certain numbers, then this rule will be true for all the numbers. This is called closure property. So in the closure property, our first property is under addition. Okay, first of all I'll take some numbers, integers, then we'll prove this property. Let the integers are -2 and 5. In the addition closure property, -2 plus 5, this is a sign of addition, and the answer is 3. Why 3? Because opposite signs are there, it means we will find the difference of 2 and 5, that is 3, and जो साइन आएगा वो बड़े नंबर का आएगा, मीन्स साइन पॉजिटिव आएगा, that is 3. You can see addition of these two integers is 3, and you know 3 is also an integer. Okay, so properties proved with -2 and 5. One more example, -2 and -5. Now I change the number, in place of 5 I took -5. Okay, we'll see
-2 plus into -5 and the answer is again -7. Why -7? Since both the integers have negative sign. If both the integers having same sign, it means value will be added. 5 plus 2 is equal to 7 and as I told you साइन किसका आएगा, साइन बड़े नंबर का आएगा, बड़ा नंबर है 5 तो नेगेटिव साइन आ गया. वन मोर एग्जांपल, -2 plus 0 that will be -2. So you can see again an integer. It means addition of integers will also be an integer. Clear? Our next property is subtraction. Taking the same numbers, -2 subtracting -5. Now you can see -5 is subtracted from -2 क्योंकि हमने इंटीजर्स -2 और -5 लिए हैं, इसलिए मैंने एक इंटीजर में से दूसरा इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर दिया. -2 is -2, माइनस इंटू माइनस प्लस 5. You can see subtraction of two integers is again an integer. 3 is an integer. And now I am taking -2 and 5. -2 -5. अब मैंने 5 को सब्ट्रैक्ट किया -2 में से, आंसर आ गया -7. -7 क्या है? इंटीजर है. लास्ट एग्जाम्पल आई विल टेक, दैट इज 0. -2 - 0 इज इक्वल टू -2. सो अगर 0 भी सब्ट्रैक्ट किया मैंने किसी इंटीजर में से, सिंस 0 इज आल्सो एन इंटीजर, आंसर हमारा इंटीजर ही आएगा, एज यू कैन सी. सो सब्ट्रैक्शन भी क्लोज हो गया, एडिशन भी क्लोज हो गया, सब्ट्रैक्शन भी क्लोज हो गया. ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन इज multiplication. So I will take -2 and 5, multiplying these two numbers, -2 into 5. साइन माइनस का आएगा, सिंस माइनस और नंबर्स में है, मतलब एक ही माइनस है तो साइन माइनस का आएगा. 5 2 जा 10. Now you can see product of these two integers is again an integer. One more example, -2 and -5. -2 multiplied by -5. अब देखिए माइनस का माइनस से मल्टीप्लिकेशन है, इट मीन्स माइनस का जो सिंबल है, साइन है, वो 2 बार आया है, इवन नंबर्स में आया है, तो माइनस और माइनस हमेशा प्लस बन जाते हैं. वी नीड नॉट रिक्वायर टू राइट प्लस. प्लस लिखने की जरूरत नहीं है आपको. 5 2 जा 10. नाउ यू कैन सी प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर. लास्ट नंबर इज as we did earlier, that is 0. So -2 is multiplied by 0 is equal to 0. देखिए आप, प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज 0, दैट इज आल्सो एन इंटीजर. तो ये प्रूव हो गया कि इंटीजर्स का प्रोडक्ट भी इंटीजर होता है.
क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशन में भी। ओके, लास्ट ऑपरेशन इज डिवीजन। ये ऑपरेशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बी वेरी केयरफुल while watching this operation. Now I am taking two new numbers. These are -6 and 2. These operations are over now. We are going to clean the board now. We are doing separately the division closure property. So -6 is divided by 2 means -6 is divided by 2 means -2. इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किया, इंटीजर आ गया। ओके, अगेन -6 and 3, -6 को 3 से डिवाइड किया मीन्स -6 डिवाइड बाई 3 -2। इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किया, इंटीजर आ गया। ओके, नाउ मूविंग अहेड, -6 and 4, -6 is divided by 4 means -6 upon 4, so cancelling by 2, 2 3 जा 2 2 जा, -3 by 2 means -1 whole 1 by 2। क्या -3 by 2 और -1 whole 1 by 2 इंटीजर्स हैं? शुरू में क्या बोला था मैंने, कोई भी ऐसा नंबर जो पार्ट्स में होगा या फ्रैक्शन में होगा इंटीजर नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि डिवीज़न के अंदर इंटीजर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। ओके, सो इट मीन्स कि ये जो प्रॉपर्टी हमारी होती है ये सभी नंबर्स में होल्ड करनी चाहिए, लेकिन डिवीज़न में यहाँ पे आके एग्जांपल ऐसा आ गया कि होल्ड नहीं करती है। वन मोर एग्जांपल, -6 and 0, -6 is divided by 0. Students, in mathematics we cannot divide any number by the 0. It is not defined, not possible, like infinity. So अगर infinity आ गया तो ये इंटीजर्स नहीं हो पाया। यहाँ पर भी हम देख पाएंगे कि डिवीज़न के अंदर इंटीजर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। इट मीन्स रिजल्ट आ गया हमारे पास क्या, कि एडिशन के अंदर होल्ड करेगी, सब्ट्रैक्शन में करेगी, मल्टीप्लिकेशन में करेगी, बट डिवीज़न में होल्ड नहीं करेगी। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स of closure property of integers.